A very good morning, dear aspirants. Welcome to Baiju's Government Exams Prep channel. Welcome to the lecture on this day in history. इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि आज के दिन यानी कि 8 जनवरी को ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्ट्स जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से लाभदायक है। रेस्ट एश्योर्ड आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एकत्रित मिलेंगे। वीडियो के अंत में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बिगिनिंग विद 1884, सोशल रिफॉर्मर केशव चंद्र सेन पास्ड अवे। समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का निधन हो गया। Keshav Chandra Sen was a Hindu philosopher and a social reformer who attempted to incorporate Christian theology within the framework of Hindu thought. इन्होंने हिंदू विचार के फ्रेमवर्क के भीतर ईसाई धर्मशास्त्र को शामिल करने का प्रयास किया। केसी सेन was born on 19th of November 1838 in Bengal Presidency of British India. इन 1855 17 वर्ष के आयु में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। In 1857, he joined the Brahmo Samaj and took up studying philosophy. इनके दादाजी रामकमल सेन सती प्रथा के समर्थक थे और राजा राम मोहन रॉय के आजीवन प्रतिद्वंदी थे, लेकिन केसी सेन साल 1857 में ब्रह्मो समाज के मेंबर बने। In 1855, he founded an evening school for the children of working men, which continued through 1858. इनको 1854 में एशियाटिक सोसाइटी का सचिव भी नियुक्त किया गया था। He became the secretary of Asiatic Society. The Asiatic Society was an organization founded to enhance and further the cause of Oriental research, that is, research into India and surrounding regions. This was founded by philologist William Jones in 1784. However, from 1784 to 1828, only Europeans were elected members of the Asiatic Society. In 1829, at the initiative of H. H. Wilson, a number of Indians were elected members. Rajendra Lal Mitra became the first Indian president of Asiatic Society in the year 1885. Coming back to K.C. Sen. K.C. Sen was inspired by Christian teachings and sought to fuse Christian teachings into Hindu framework. He thought that only Christian doctrine would help instill a new life into Hindu society. वो क्रिश्चियन मिशनरी कार्य के अनुशासन से भी प्रभावित थे और उन्होंने खुद इसका पालन करना शुरू कर दिया था। In the year 1865, this lean towards Christianity caused a rift between him and Debendranath Tagore, and he broke away from the Brahmo Samaj and formed the Bharatvarshiya Brahmo Samaj. केसी सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी इन द ईयर 1866. This was a breakaway organization created while the Brahmo Samaj remained under the leadership of Debendranath Tagore. In the year 1870, he met the British monarch Queen Victoria and expressed his acceptance to the British rule. This angered the people in India. इनके इस विचार से भारत के लोग क्रोधित हुए। 1870 में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स थे फीमेल इम्प्रूवमेंट, इनएक्सपेंसिव लिटरेचर, एजुकेशन, टेम्परेंस एंड चैरिटी। सेन ने बाल विवाह के खिलाफ प्रचार किया और विधवा पुनर्विवाह और इंटरकास्ट मैरिजेस की वकालत की। However, he lost some of his followers when he was criticized for getting his underage daughter married to the Prince of Kuch Bihar. In the year 1881, he formed the Nabo Bidhan, which intended to incorporate the best principles of Christianity and Western spirituality within Hinduism. 8 जनवरी 1884 में इनका निधन हो गया। आज के डिस्कशन का अगला टॉपिक है 1895, जब भारतीय श्रम आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र सखाराम रुइकर का जन्म हुआ था। रामचंद्र सखाराम रुइकर was born in Kolhapur in Maharashtra on 8th of January 1895. He created a legal service in Nagpur where he founded the Nagpur Textile Union. This union was the first to be registered under the Trade Unions Act. नागपुर टेक्सटाइल यूनियन सबसे पहला यूनियन था जो ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हुआ था। He went on to help create more unions around India. इन्हें 2 बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था।
Ruikar was also selected as the All India Trade Union Congress delegate at the International Labour Organization Conference. इनको इनके बिलीफ्स के कारण कई बार गिरफ्तार कर लिया गया था और कैद भी कर लिया गया था. He led a split within the forward bloc in the year 1948 and उनके ग्रुप ने एक अलग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया. In the year 1948, he became the president of Hind Mazdoor Sabha Trade Union Federation. Ramchandra Sakharam Ruikar was a pioneer of the Indian labor movement. ये भारतीय श्रम आंदोलन के पुरोधा है. So what is labor movement? The early period of industrialization in 1875 witnessed a labor movement which was mostly the response of working class to the tensions arising in the work life. ये कार्य जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव के लिए कामकाजी वर्ग के प्रतिक्रिया थी. Workers fought not only against inhuman working conditions but also against imperialist oppression and for a meaningful national cause. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1942. इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग वाज बोर्न. अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1942 में. स्टीफन हॉकिंग एक इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे और ऑथर भी थे. इनका जन्म हुआ था ऑक्सफोर्ड में इनटू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. 1966 में इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी प्राप्त की. इनका स्पेशलाइजेशन था जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी. During this period, he was diagnosed with an early onset slow progressing form of motor neuron disease. यही उनके पैरालिसिस का भी कारण बना था. After the loss of his speech, he started using a speech generating device to communicate. Hawking was the first to set out theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and quantum mechanics. Stephen Hawking is also known for his theoretical predictions that black holes emit radiations often called as Hawking radiations. ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के रेसिपिएंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. द बुक इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉस्मोलॉजी. 1991 में इसी नाम का एक मूवी भी बनाया गया था दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड दिस फिल्म इज अ बायोग्राफी ऑफ स्टीफन हॉकिंग. Stephen Hawking was the director of research at the Center of Theoretical Cosmology at the University of Cambridge at the time of his death. 14 मार्च 2018 में इनकी मृत्यु हो गई. Our next topic for discussion for today is 1973. Soviet space mission Luna 21 was launched. सोवियत अंतरिक्ष मिशन लूना 21 का प्रक्षेपण किया गया था. Luna 21 was an unmanned space mission launched on 8th of January 1973. Luna 21 को लॉन्च किया गया था from Baikonur Cosmodrome by 4-stage proton rocket. It was launched by Soviet Union. ये अंतरिक्ष यान मून पर उतरा और दूसरा सोवियत लूनार रोवर लूनोको 2 को मून के सरफेस पर डिप्लॉय किया. इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे लूनार सरफेस के इमेजेस का संग्रह करना, पृथ्वी से लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करना, सोलार एक्सरेज को ऑब्जर्व करना और लूनार सरफेस मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना. इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होंगे. आज की अगली महत्वपूर्ण घटना है 1995 डेथ ऑफ मधु लिमाये, अ नेशनल लीडर. Madhukar Ramchandra Limaye was an Indian socialist essayist and activist. He was particularly active in the 1970s. इनका जन्म हुआ था पुणे में on 1st May 1922. He was previously associated with the Indian National Congress and the Congress Social Party. His education was interrupted due to participation in the freedom movement. इनको 1940 और 1945 के बीच में जेल में कैद किया गया था. ये राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर भी थे. लिमाये जनता सरकार में सक्रिय थे जो इमरजेंसी के बाद केंद्र में सत्ता में आई थी. द जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज फाउंडेड एज एन अमालगम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज opposed to the emergency that was imposed
between 1975 to 1977 by Prime Minister Indira Gandhi of the Indian National Congress for a period of 21 months. 1977 के जनरल इलेक्शंस में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और जनता लीडर मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई became the first non-Congress Prime Minister of independent India. Coming back to Madhu Limai, in his retirement through the 1980s, he continued to write. He especially wrote on constitutional issues. आज ही के दिन यानी कि 8 जनवरी को 1995 में इनका निधन हो गया। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आज के डिस्कशन पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, हु एस्टैब्लिश्ड द भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज? भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी रामकमल सेन। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन या ऑप्शन डी नील्स बोर। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजेंद्र लाल मित्रा या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 4, लूनोखोर 2 रोवर was launched on moon by which of these spacecrafts? इनमें से कौन सा अंतरिक्ष यान द्वारा लूनोखोर 2 रोवर को चंद्रमा पर उतारा गया था? ऑप्शन ए लूना 2, ऑप्शन बी अपोलो 1, ऑप्शन सी लूना 21 या ऑप्शन डी मराइनर 10। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज हॉकिंग रेडिएशन रिलेट टू? हॉकिंग विकिरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेडिएशंस फ्रॉम द सन, सूर्य से विकिरण, ऑप्शन बी न्यूक्लियर रेडिएशंस यानी कि परमाणु विकिरण, ऑप्शन सी रेडिएशंस फ्रॉम द ब्लैक होल यानी कि ब्लैक होल से विकिरण या ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है अल्ट्रावायलेट विकिरण। क्वेश्चन नंबर 6, Who was the first non-Congress Prime Minister of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लूना 21 स्पेस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय? लूना 21 अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी सोवियत यूनियन। With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल 2021 में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले और सक्सेस भी मिले और आपके देश की सेवा करने के सपने सभी साकार हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। कल फिर से मुलाकात होगी विथ मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।